हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर चैप्टर 4, थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग कल्चरल डेवलपमेंट from 6th century BC to 6th century AD. In this top chapter, we read the various important topics. In my last class, I have discussed about the stupa and their architecture, where I have given already the various point about stupa, their place, their importance, and why were stupa built and how were stupa built, what was the reason behind that, the stupa, the structure of the stupa, everything we have discussed in my previous video. We have also discussed that the fate of Amravati and Sanchi, why Sanchi is existence now that time properly and Amravati that was destroyed. What was the reason behind that? We have discussed this also in our previous video. My dear student, Amravati, as you know that this is a very marvelous and beautiful stupa in not only India but also worldwide level. It was constructed by marbles with the various sculptures, Jatak story, and it was the milestone of the stupa architecture in India. But unfortunately, it was destroyed, it was looted by someone, by Britishers, by Franceses. This is the very strange matter. So that's why one Englishman, he was disappointed having seen that. He claimed that no one have right to looted the sculpture. It should be their own particular place. उनको अपने स्थान पे होना चाहिए, उनको अपनी जगह पे होनी चाहिए. ये बात उसने कहा H.H. कोल्ड ने 1818 में. Today we will read the sculpture. This is the Grand Gateway, Eastern Gateway of Sanchi. What you have seen in this picture? You have seen in this picture that this sculpture, this architecture, which is stand now that time also on the eastern gate of the Sanchi. That is eastern Grand Gateway of Sanchi. You have seen the various animal are mentioned here. You have seen the elephant, lion. You have also seen the flowers, imaginary animal also. Wheel is mentioned on the above belt of the gateway. The Jatak story also explained by sculpture. Here we have seen a lot of things. The gateway explained various informations about Buddhism. We've also seen a women sculpture, women statue in the lower portion of the right side pillar, वो लटकती हुई एक महिला की आकृति दिख रही है. सी सालभंजिका, सालभंजिका की प्रतिमा है. We will discuss about सालभंजिका. So today we are going to read about the sculpture of this architecture. Sculpture, we have just seen how sculpture were removed from stupa and transported all the way to Europe. This happened partly because of those who saw them, considered them to be beautiful and valuable, and wanted to keep them for themselves.
Let us look at some of these moral closely. That is the very important things. If you will read this line, if you will try to understand the problems of these monuments, why they not stand there on actual position, you have to aware of the incidents which happened during that time. You have to also aware about that the rulers who ruled on India during that time. You have to also aware of their mentality to preserve and protect to conserve our national heritage, historical heritage. And then after you can find out what I want to inform you, what I want to teach you. डियर स्टूडेंट, अगर आप बात करें देखिए मूर्तिकला की, स्कल्पचर की, तो अभी अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है स्तूपों में मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये बहुत ही खूबसूरत, मूल्यवान, सुंदर प्रतीत हुई, उन्हें आकर्षित कर रही थी, इसीलिए वो इन्हें अपने यहाँ रखना चाहते थे। वो इन मूर्तियों को उठा ले गए, अपने यहाँ अपने गार्डन में लगाया। कोई आश्चर्य की नहीं बात है कि आप अगर ब्रिटेन के गार्डन में जो यूजलेस है, वेस्ट है, वहाँ पे आप अमरावती के कुछ पार्ट्स प्राप्त कर लें जो मार्बल के बने हुए हैं। कुछ स्कल्पचर्स आपको मिल जाएंगे। आज भी लंदन और फ्रांस के बहुत सारे जगहों पे अमरावती के ये जो स्तूप की मूर्तियाँ, ये जो स्तूप के आर्किटेक्चर्स, स्कल्पचर्स बिखरे पड़े मिले हुए। कुछ म्यूजियम में है, कुछ आर्काइव्स में कुछ रखे, कुछ फोटोग्राफ्स बना के आर्काइव्स में डाल दिए, म्यूजियम में जगह जगह ले आके स्थापित कर दिया गया। लेकिन इनकी अपनी वास्तविक महत्ता खत्म हो गई। थोड़ी सी अवेयरनेस के चलते अगर ये भावना उनके अंदर होती भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने की, तो शायद वो ऐसा ना करते। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, हम बात करेंगे इस स्कल्पचर पे आज, जो आज अपनी जगह पे नहीं है और कुछ जगहों पे है भी। इन मूर्तियों पे, इन आर्किटेक्चर पे क्या बना है, क्या सोच थी, क्या थीम था आर्टिशियंस का जब वो इसे बना रहे थे। व्हाट वाज थीम इन द माइंड ऑफ आर्टिशियंस when they made such type of sculpture? What you want to narrate on the basis of their art? No doubt to say that their art was one of the finest art in India during that time. You imagine that they have no technology like modern India, like now that time, but they did the very finest work. बहुत सफाई के साथ उन्होंने इसका कार्य किया। आप पत्थरों को देखें, मूर्तियों को देखें, स्तूपों को देखें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप यहाँ पे इन छोटी छोटी चीज़ों को देखिए। स्तूपा क्या कहते हैं, स्तूपा की पूजा करते हुए लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग बैल पे बैठे हुए हैं, हाथी अपना सूंड उठाए हुए कुछ लोगों की उपासना कर रही है। गजलक्ष्मी प्रकार की साइन आपको कई जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन चीज़ों पे। पहले इन पत्थरों पे किन की स्टोरी कही गई है। स्टोरीज इन स्टोन। यू मे हैव सीन द वंडरिंग स्टोरी टेलर कैरिंग स्क्रॉल of cloth or paper with picture of them and pointing the pictures as they tell a story. आपने अपने गांव में देखा होगा, जो घूमने वाले लोग आते हैं, जो नाटक दिखाने वाले लोग आते हैं नुक्कड़, वो कुछ कहानियाँ कहते हैं और अपने कपड़े पे कुछ पेंटिंग्स के आधार पर उस कहानियों को चित्रित किया हुआ है, उसको दिखाते हैं। जैसे आप वो अपनी बातों को अच्छे से समझा सकें। ठीक ऐसे ही
अगर आप देखेंगे तो अ सेक्शन ऑफ द गेटवे, ये मैं आपको कई सारे मोर की आकृति, ये सब चीज़ें ठीक वैसे ही हैं जैसे वो आपके गांव में आने वाला नरेटर्स चारण, जो चारण चित्रों को जो जो आपको कहानी को आकर्षक बनाने के लिए चित्रों का सहयोग करता है, लेके आता है, ठीक वैसे ही इन कलाकारों ने इन मूर्तियों के आधार पर बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कहानियों को प्रेरित किया। सोसाइटी को मैसेज देने का प्रयास किया गया और काफ़ी हद तक वो सफल हुए। यहाँ आप देखिए चक्र की क्लियर आकृति दिख रही है आपको, आपको इमेजिनरी एनिमल के रूप में शेर दिख रहा है, उसके पंख हैं। आप अगर ध्यान से इन चीज़ों को देखें तो आप समझ सकते हैं स्कल्पचर्स के बारे में। सो हियर आई क्लियरिफाई यू दैट द इन द ऑन द ग्रैंड गेटवे sculpture what we find, it is only narrate the story of Jatak. Jatak story belongs to Buddhism. Jatak story belongs to 500 birth of Buddha. Jatak, that is the mythological story which is mentioned on the stone. स्टोन पे इन आकृतियों को अंकित किया गया है। आप एक एक चीज को देखें, फिगर 4.13 को देखिए। मैंने कहा था कि फिगर 4.13 के जो स्कल्पचर्स हैं उसे प्रारंभ में इतिहासकार नहीं समझ सके, क्या ये है, क्या दिख रहा है। लेकिन जब उन्हें लिटरेचर को पढ़ा, बौद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ा, तो उसमें उन्हें कहानी मिली। वेशांतर जातक में कहानी आती है कि एक राजकुमार था जिसने अपना सर्वस्व दान कर दिया एक ब्राह्मण को और अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ जंगल चला गया। जो ये आकृति जो स्कल्पचर के रूप में ऊपर पट्टिका में दिखाई गई है, वही वेशांतर जातक की स्टोरी है जो गेटवे पे है। इन चीज़ों पे हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे सिंबल ऑफ वर्शिप पे। सिंबल ऑफ वर्शिप ऑफ द बुद्धिज्म क्या थे? इफ यू हैव रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास, आई have informed you about some symbol which is very auspicious in Buddhism, like elephant, like lotus and ox, like wheel, like people, tree, like स्तूपा। आपको एक पूरी डिटेल हमने दिखाई थी। हमने वहाँ उन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया था। आई हैव टोल्ड देयर दैट when Buddha came in their mother अपनी जब माँ के गर्भ में वो आए तो इसको प्रतीक के रूप में हाथी के रूप में दिखाया जाता है। जब बुद्ध ने जन्म लिया तो प्रतीक के रूप में दिखाने के लिए से कमल या सांड की आकृति में, बैल की आकृति में सिंबॉलिक रूप में बुद्ध को जन्म लेने की कहानी स्कल्पचर के माध्यम से शो की जाती है। बुद्ध ने घर छोड़ा, गृह त्याग किया, घोड़े से इसको दिखाया गया। बुद्ध ने घर छोड़ दिया। इट मीन्स सिंबॉलिक फॉर्म, आर्टिसियन ट्राइड टू व्हाट रिफ्लेक्ट दिस स्टोरी विद द हेल्प ऑफ हॉर्स। घोड़े की मदद से उसने इस बात को सिंबॉलिक रूप में दिखाया कि बुद्ध ने घर त्याग दिया। नेक्स्ट उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, इंटेलेक्चुअल बने, enlightenment, when he attained enlightenment, symbolic form which shown on sculpture, which shown in sculpture, that is well, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, people, और फिर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, that is well, और फिर उनकी मृत्यु हुई, स्तूपा। इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में कई सारी चीज़ें दिखाई गई। हम एक बार फिर आपको उन चीज़ों पे ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमने आपसे कहा, मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ, इन चीज़ों को नोट करिए, इन चीज़ों को समझिए। व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट। जन्म बुद्ध का पहले अपनी माँ के गर्भ में आना सिंबॉलिक रूप में,
हाथी, एलिफेंट। बुद्ध का जन्म सिंबॉलिक रूप में कमल और सांड। बुद्ध का घर को छोड़ना, गृह त्याग, घोड़ा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, पीपल, पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष जिसे कहा गया। बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति के लिए पद चिन्ह, पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स सिंबॉलिक रूप में दिखाते हैं। इसका मतलब बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। और फिर बाद में बुद्ध की मृत्यु को स्तूपा के रूप में दिखाते हैं। इन सब के अलावा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसे व्हील के रूप में, चक्र के रूप में बौद्धिस्ट स्कल्पचर में क्लियरली दिखाया जाएगा। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे। जिन चीज़ों पे हम देखेंगे कि किन किन बातों में कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं, मैं पिक्चर के माध्यम से भी इसको आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। प्लीज केयरफुली listen and observe what I am saying you. सिंबल ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको आसानी से सारी बातें समझ में आएंगी। सिंबल ऑफ वर्शिप। ओके, देखते हैं क्या कहता है आपका बुक। कहता है कि आर्ट हिस्टोरियंस हैड टू एक्वायर द फेमिलियरिटी with the hagiography of the Buddha. What is the meaning of hagiography? Hagiography definition is also given. Hagiography definition is also given. I will explain. Hagiography meaning the biography like story. उनके चरित्र के बारे में बात करना हैगियोग्राफी मतलब। उनके कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना हैगियोग्राफी मतलब। कहता है आर्ट हिस्टोरियन हैड टू एक्वायर्ड the familiarity with the hagiography of the Buddha in order to understand Buddhist sculpture. कहता है कि बुद्ध की जो स्कल्पचर, बौद्धिस्ट स्कल्पचर जो दिखते हैं ग्रैंड गेटवे पे, उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो बुद्ध की पूरे जीवन चरित्र को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कला के माध्यम से, स्कल्पचर के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से बुद्ध की पूरी जीवन को एक्सप्लेन करने का प्रयास आर्टिशियंस ने किया है। According to hagiography, the Buddha attained enlightenment while meditating under a tree. Many early sculptures did not show the Buddha in human form. Instead, they show his presence through symbol. Actually, I have already discussed you about the sect of Buddhism. I have told you in the second Buddhist Council, it is clearly information we have that Buddhism sect divided into two parts, Sthavir or Theravada, and second Mahasanghic or Sarvastivada. Behalf of their practices. And in fourth Buddhist council, it was clearly divided into two parts, Hinayan and Mahayana. And in Hinayan, when we discuss about the differentiation between Hinayan and Mahayana and their beliefs and faith, on that place I have clearly told you that Hinayan, they treated Buddha as a teacher, as a human being. They did not like to worship them as a idol. They worship them as a iconic form, as a symbolic form, not a human being form. But, and second hand, we have seen Mahayana, they treated himself as a god. They make the various statue of the Lord Buddha and they started worship them. That is the differences. So that's why here author want to inform you, Buddha in human form. Because many early sculptures did not show the Buddha in human form. Why? Because they were aware of the Hinayan and their faith. They didn't like that the Buddha saw in human form on sculpture. Instead, they show his presence through symbols, the empty seats. Figure 4.1
4 को अगर आप देखें, फिगर 1.41, आई थिंक देयर इज 4.14 फॉर राइट इम्पटी सीट। एक राइट साइड में देखिए आप, एक कुछ लोग बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, और पूजा करते हुए एक खाली जगह बना हुआ है, इम्पटी सीट है। क्यों है? कह रहा है कि empty seat was meant to indicate that meditation of the Buddha, and the stupa was meant to represent the Mahaparinirvan. And second peak you can see a stupa clearly. What so? So that महापरिनिर्वाण, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात करता है, बुद्ध की मृत्यु की बात करता है। बुद्ध ने अपने शरीर को छोड़ दिया। ये सिंबॉलिक रूप में स्तूपा के रूप में दिखाया जाता है। नीचे देखिए सारे लोग व्याकुल दिख रहे हैं, ऊपर स्तूप बना हुआ है, सब उसकी उपासना कर रहे हैं, उसके चारों तरफ खड़े हैं। व्हाट इट्स सो? इट्स सो कि बुद्ध अपना शरीर त्याग दिए। स्कल्पचर ने कितनी आसानी से अपने सिंबॉलिक फॉर्म में बुद्ध की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। नेक्स्ट अगर आप चेक करें तो कहते हैं अनदर फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल वाज द व्हील, फिगर 4.16। अगर आप देखें तो क्लियरली अ व्हील पिक्चर इज शोन ऑन द फिगर 4.16 बिलो, सिटिंग इन द मोशन द व्हील ऑफ थंब। लोग उसके नीचे बैठे हुए हैं, चक्र घूम रहा है। इसका मतलब धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। कितनी अच्छी सोच थी, क्या कल्पना थी। आप इन चीज़ों को सोचें तो आपको समझ में आएगा कि उस समय का आर्टिस्ट कितना अच्छा अपनी बातों को एक्सप्लेन करता था। Another frequently used symbol was the whale. This stood for the first sermon of the Buddha delivered at Sarnath. As obvious, such a sculpture cannot be understood literally. For instance, the tree does not stand simply for tree, but symbolizes an event, the life of Buddha. In order to understand such a symbol, historians have to familiarize themselves with the traditions of those who produced these works of art. Dear student, here I have given the various symbols and interrelate with the life of Buddha. So that's why historians believe that the story on a stone is clearly related, clearly like that the hagiography of Buddha. Artisans want to explain, want to reveal the story of Buddha with the help of a stone. पत्थरों की मदद से उन्होंने पूरी कहानी कहने की बात की। सिंबॉलिक रूप में हमने पढ़ा स्तूपा, व्हील, ट्री, इम्पटी, प्लेस, and even if another frequently used symbol was the wheel, figure 4.16, that stood for the first sermon of the Buddha delivered the Sarnath. As obvious, such a sculpture cannot be understood literally. For instance, the tree does not stand simply for the bud, the symbolize in the event of this life of Buddha. In order to understand such symbols, historians have familiarized themselves with the traditions of those who produce this work of art. I have already told you about the story of Buddha. मैंने बुद्ध की स्टोरी बताया। इसमें कहा था कि उन्होंने सारनाथ वो पहली जगह थी जहाँ पे उन्होंने संघ की स्थापना की, धर्म प्रचार का कार्य शुरू किया। 5 ब्राह्मणों को अब असज, बोधिस, पद्य, महानामा वो ज्ञान की प्राप्ति दी, पहला उपदेश दिया, और यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना हुई। सिंबॉलिक रूप में धर्म चक्र प्रवर्तन की जो बात मैंने की थी, सिंबॉलिक रूप में चक्र व्हील से इसको दिखाया गया। अब देखिए कह रहा है कि दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा डिलीवर्ड द सारनाथ। सर्मन के लिए, उपदेश के लिए वहां पे खड़े थे वो। अब नीचे नेक्स्ट आपको देखिए तो आपको दिखेगी एक महिला है। दिस पिक्चर द वुमेन एट द गेट। ओके, मैं आपको फिर प्रीवियस ले चल रहा हूँ गेट के पास रिकॉल कराने के लिए।
आप इस वुमेन्स को देखिए और फिर आपको थोड़ा सा पहले ले चलते हैं। इस वुमेन की स्कल्पचर्स आपको इसमें दिखेंगी। आप देखें, आपको वुमेन्स की स्कल्पचर यहाँ दिख रही है। मैंने कहा था कि दोनों गेट के जस्ट ऊपर जाइए, राइट गेट के जस्ट ऊपर जहाँ पे चौकी है, चौकी के पहले ऊपर तीनों मेहंदियों के नीचे आपको एक महिला राइट साइड में कुछ पकड़ के झूलती हुई दिख रही है। दैट इज स्कल्पचर ऑफ साल भंजिका। दैट इज आल्सो in symbolic form. In the starting, historian not getting what is this and what artisan want to explain. शिल्पी क्या कहना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, लोग समझ न सके। But when they study the Buddhist text, methodical text, Brahmanical text, they find that this sculpture is as same in other methods like Brahmanicals. This is Sal Bhanjika. The popular traditions. Other sculptures at Sanchi were perhaps not directly inspired by Buddhist ideas. This include beautiful women swinging from the edge of the gateway, holding out a tree, figure 4.17. You have seen, again I am saying, again I show the picture. She is swinging with the help of tree. Okay. Initially, the scholars were a bit intrigued about this image, which seemed to have little to do with renunciations. However, after examining other literary traditions, they realized that it could be the representation of what is directed the Sanskrit as Sal Bhanjika. According to popular beliefs, that was women who touch, caused tree to flower and bear fruit. It is likely that this was regarded as a auspicious symbol and integrated into a decoration of the stupa. The Salbhanjika motif suggests that the many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs, practices and ideas. Some of the recurrent motifs in the sculpture art Sanchi were eventually derived from these traditions. Having seen the Salbhanjika, we can understand that the various people who came from the various sects, various religion, they joined the Buddhism. बहुत सारी संख्या में और धर्म के लोग, ब्राह्मण धर्म के लोग बौद्ध धर्म से आकर्षित हुए, लेकिन बौद्ध धर्म से आकर्षित होने के बाद भी वो अपने पुराने विश्वासों को भूले नहीं। उन्होंने अपने पुराने विश्वास, उन्होंने अपने पुराने मान्यताओं को स्कल्पचर के माध्यम से बुद्धिज्म के स्कल्पचर को इनरीच करने में लगाया। साल भंजिका की जो कहानी आती है वो बुद्धिज्म में नहीं है, वो ब्राह्मणिकल में रिलीजन में है। ब्राह्मणिकल रिलीजन में साल भंजिका संस्कृत शब्द है जो एक महिला क्या करती है, जिसके छूने से बागों में बहार आ जाती है, फूल खिल जाते हैं, पेड़ों में फल लग जाते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है। तो इस तरह की कल्पना जो संस्कृत में की गई थी, संस्कृत साहित्य में की गई थी, ब्राह्मणिकल मेथड्स में की गई थी, वो संकल्पना को उन्होंने बुद्धिज्म में डाल के बुद्धिस्ट स्तूपा आर्किटेक्चर्स को, स्कल्पचर्स को और डेवलप करने का प्रयास किया। लोक परंपराएं में उस कहानी को, लोक परंपराओं की कहानी को भी इन्होंने बौद्ध धर्म से जोड़ दिया। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध धर्म से जो सीधे नहीं जुड़ी हुई थी वो भी दिखाई गई हैं। कुछ सुंदर महिलाएं मूर्तियों के रूप में उत्कीर्णित हैं जो ग्रैंड गेटवे के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखाई दे रही हैं। 4.17 में देखिए साल भंजिका की प्रतिमा आपको दिखेगी, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूं। शुरू में विद्वान इसके बारे में, इस मूर्ति के बारे में थोड़े असमंजस में थे। एक्चुअली
वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि ये बौद्ध धर्म से कैसे संबंधित है। फिर उन्होंने तमाम साहित्यों परंपराओं का अध्ययन किया। संस्कृत भाषा में वर्णित जो सालभंजिका की बात उन्होंने देखी, लोक परंपरा में जिसके बारे में एक मान्यता थी कि उसके छूने से वृक्षों में फूल खिल उठते हैं, फल लग जाते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, एक शुभ प्रतीक के रूप में, ऑस्पिशियस सिंबल के रूप में एक्सेप्ट किया जाता था, उसे सालभंजिका कहा गया और स्तूप के अलंकरण में उसका इस्तेमाल कर लिया गया। ये बातें कई चीज शो करती हैं। सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बुद्ध धर्म के आने से पहले की मान्यताओं को, बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं, धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध करने का प्रयास किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए प्रतीक चिन्ह निश्चय ही इन परंपराओं से उभरे थे। निश्चय ही उन परंपराओं से स्तूपों को आर्किटेक्चर में जो एनरिच करने का प्रयास किया वो वहीं से लिए गए थे। और इन चित्रों के माध्यम से और भी प्रतीक चिन्ह, जानवरों के भी खूबसूरत उत्कीर्णन इस पे किए गए। मैंने आपको दिखाया हाथी के चिन्ह, एलिफेंट्स, लायन, पिकॉक और बहुत सारी चीज़ें, इमेजिनरी बर्ड, इमेजिनरी एनिमल, गाय, बंदर, घोड़े, बैल, सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं आर्टिशंस के माध्यम से, स्टोरी ऑन स्टोन पे। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में भी दिखाया गया। उदाहरण के लिए हाथी जो था शक्ति के लिए था, पावरफुल, एक थिंग्स के रूप में, टैंक के रूप में दिखाए जाते थे। इन प्रतीकों में कमल और हाथी, हाथियों के बीच एक प्रतिमा दिखाई गई है, उत्कीर्ण मूर्तियां दिखाई गई। मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते हैं। अब थोड़ी सी प्रतिमा को नीचे ले चल रहा हूं मैं आपको। आप यहाँ देखिए, हाथी दिख रहे हैं। हाथी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हाथी शक्ति का द्योतक है, हाथी समृद्धि का द्योतक है। एलिफेंट्स को ऑस्पिशियस सिंबल के रूप में सभी धर्मों में स्वीकार किया गया। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, एक ऑस्पिशियस सिंबल, पावर, प्रॉस्पेरिटी के रूप में हाथी दिखाई जाती है। देयर आर अदर इमेज एज वेल। फॉर इंस्टेंस, सम ऑफ द finest depiction of animal are found there. Their animals included elephant, horse, monkey, cattle. The Jatak contains several animal stories that are depicted at Sanchi. It is likely that many of these animals were carved to create lively scenes to draw viewers. Allows animal were often used as a symbols of human attributes. Elephant, for the example, were depicted to significance, strength and wisdom. The next, गजलक्ष्मी। एक आपको सर्किल दिख रहा है जिसमें एक महिला बीच में खड़ी है, दो हाथियां उसके ऊपर दिखा रही हैं। गजलक्ष्मी, इट इज कॉल्ड गजलक्ष्मी। कई स्तंभों पे इस तरह की आकृतियां दिखाई, लोक परंपराओं की जो चित्र, कई स्तंभों पर गजलक्ष्मी के साथ साथ सात सांप दिखे हैं। गजलक्ष्मी को अगर आपको समझना हो तो गजलक्ष्मी प्रकार की प्रतिमाओं को देखिए, ये ठीक वैसे ही दिख रही है जैसे आजकल हम हिंदू माइथॉट्स में लक्ष्मी जी की आकृति देखते हैं, फोटो देखते हैं। लक्ष्मी जी खड़ी है, दो हाथियां हैं और दे रहे हैं, इसलिए इनको इतिहासकारों ने गजलक्ष्मी कह के जोड़ा। गजलक्ष्मी स्नेक की आकृति भी है। हिंदू माइथॉट्स में शेषनाग की कल्पना की गई है, ठीक वैसे ही यहाँ बौद्धिस्ट माइथॉट्स में स्नेक, अ सर्पेंट एट सांची, सांची पे एक सांप की आकृति है, वो भी कई फन वाला है शेषनाग की तरह। ये भी दिखाता है कि बाहर के जो हिंदू धर्म के लोग या ब्राह्मण धर्म के लोग जो बौद्ध धर्म में गए, उन्होंने अपनी मान्यताओं को, उन्होंने अपनी प्रथाओं से, उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास से
बौद्धिस्ट स्कल्पचर को इनरिच किया. Another motive is that the woman surrounded by lotus and elephant, which seem to be the sprinkling water on her, performing an abhishek or consecrations, while some historians identify the figure of Maya, the mother of Buddha. Other identify her with the popular goddess Gajalakshmi, literally the goddess of good fortune, who is associated with the elephant. It is also possible that the devotees who saw these sculptures identified that figure, Gajalakshmi, considered to foot serpent, which is found in the several pillars. The motive of seem to be diverse to the popular traditions, which were not always recorded as text. Interestingly, one of the earliest modern art historians, James Ferguson, considered Sanchi to be the center of tree and the serpent worship. He was not familiar with Buddhist literature, most of which had not yet been translated, and arrived at this conclusion by the studying only the image on their own. इन चीज़ों को देखने से पता चल रहा है कि किस तरीके से बौद्ध धर्म की चीज़ें हमें एक्सेप्ट की गई. इस आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में. ओके, गुड बाय एंड टेक